Welcome students again. Today we are going to study a very important chapter of macroeconomics. All of you are very much afraid of this chapter. Many children are always struggling to know about this chapter. So let us learn this chapter, understand this chapter in a better way. So let us begin. This is the chapter basic concept of macroeconomics. This unit is national income accounting in your macroeconomics, and it holds 10 marks in your board exams. Let us start what the concept. First concept is, suppose in your class 11th you have done all the chapters related to microeconomics, and in class 12th you are going to do all the chapters related to macroeconomic studies. We already had this briefing in your class 11th, so let us recapitulate what is microeconomics and what is macroeconomics. If we talk about the branches of micro and macroeconomics, branches of economics, so one is microeconomics, another is macroeconomics. Though there are many diversities in studies of economics, international economics is also there, then demography is also there, but right now we are doing the micro and macroeconomics. So there are two economics, micro and macro, two types, two branches are there. Microeconomics deals with the individual unit of ऑर्गेनाइजेशन, है ना, किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का इंडिविजुअल यूनिट को जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. इंडिविजुअल यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, है ना, इंडिविजुअल सप्लाई. एंड व्हाट इज दैट इंडिविजुअल, मतलब कि एक व्यक्ति का डिमांड, एक व्यक्ति का सप्लाई, एक कमोडिटी का पूरी कंट्री का डिमांड. अगर हम बोल रहे हैं कि द कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड बाय होल ऑफ द कंट्री, सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि अरे पूरी कंट्री आ रही है तो मैक्रो कॉन्सेप्ट है. नो, इट इज़ अ माइक्रो कॉन्सेप्ट बिकॉज ये सिर्फ सिंगल कमोडिटी के बारे में बात कर रहा है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डीलिंग ओनली विथ सिंगल कमोडिटी, सिंगल firm, single consumer, single supplier, single producer. So whenever we are studying about individual unit of an economy, then it is known as microeconomics. If we talk about macroeconomics, macro is studying the economy as a whole. So when we talk about the national concepts like national income, like national employment, like inflation which takes place in whole of the economy, so all the chapters which you are studying in macroeconomics, they are the variables of macroeconomics. If we talk about macroeconomics के अगर आप चैप्टर बात करें, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, these all are macro concept. And if you talk about micro concept, all those chapters which you have studied in your class 11th in your microeconomics books. So whenever variables are asked, you can straight away write down the chapter's name, like theory of pricing, like this distribution और डिमांड, मार्केट डिमांड. अब अगर मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड आप कहेंगे तो पूरी मार्केट का डिमांड है. अगेन इट इज़ अ माइक्रो कॉन्सेप्ट क्योंकि मार्केट डिमांड इज़ रिलेटेड टू ओनली वन कमोडिटी. बट हाँ, एग्रीगेट डिमांड मैक्रो कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो क्या पड़ता है, पिन से एरोप्लेन तक जो भी देश में सब चीज़ें बिकी है वो सब एग्रीगेट डिमांड, उन सब का टोटल एग्रीगेट डिमांड है. तो एग्रीगेट डिमांड इज़ अ मैक्रो कॉन्सेप्ट बट मार्केट डिमांड इज़ अ माइक्रो कॉन्सेप्ट. इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्रीगेशन, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन आप सोचेंगे कि फिर माइक्रो में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है या नहीं होता है. होता है. जब आप इंडिविजुअल डिमांड सारे ऐड कर लेते हो तो मार्केट डिमांड आता है, और ये मार्केट डिमांड इज़ एग्रीगेशन ऑफ मेनी ऑफ द थिंग्स, है ना, डिमांड. बट मैक्रो में जब आप बात करते हैं तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज़ वेरी वेरी हाई. सो लाइक स्मॉल लिटिल थिंग्स यू विल हैव टू टेक केयर. माइक्रो एंड मैक्रो, दिस आर द डिफरेंसेस. माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल. डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो में कम होती है, मैक्रो में कम होती है. दिस वे यू हैव टू डू द डिफरेंसेस ऑल्सो. इफ यू टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसिंग, ये सब आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, ये सब माइक्रो वेरिएबल्स है. एंड टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन this unemployment is there, all these things are macroeconomic, like income and employment, general price level and inflation, these are macro variables. So microeconomics we have already done, that focuses on the individual parts of the economy, so I am just this we have already done. If we talk about emergence of macroeconomics, macroeconomics कब चालू हुआ, the general theory of employment, interest and money in 1936 Professor Keynes gave this theory, and he is the father of modern economics, macroeconomics, and his
you know, his theory was not getting any type of recognition बिफोर द वर्ल्ड वॉर, और जब जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जाके, क्योंकि उससे पहले ये सेज लॉ चलता था जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का था कि आप सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड मतलब कि आप जो भी चीज़ आपके पास है आप उठाओ, प्रोड्यूस करो, मार्केट में डालो, अपने आप डिमांड बन जाती है और वो चीज़ें बिक जाती है. दिस वॉज द थियरी बिफोर वर्ल्ड वॉर. सो दैट टाइम इट वॉज बीइंग थॉट दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन because most of the theories were belonging to the capitalist economy. But after World War it has been realized that there is a need of the government intervention. गवर्नमेंट बीच में आना ज़रूरी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन. एंड आपको पता है वर्ल्ड वॉर में नाइट ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट लिमिटाइज्ड हो जाते हैं. सो इस वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के शॉर्टेजेस हो जाते हैं. तो वहाँ गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से वो राशनिंग करे सब चीज़ों की और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करे ताकि नेशन में जो भी आपकी स्कार्सिटी है उसको बेटर वे में हैंडल किया जाए. तो वहीं पर फिर कीन्स की थ्योरी को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिला एंड आफ्टर दैट इट हैड बिकम पॉपुलर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ दिस मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कीन्स गॉट recognition. Now coming to the macroeconomics, you know that is the study of economy as a whole and deals with broad economic aggregates such as national income, etc. Then what type of problems are there, like problem full employment, distribution of income, all these are there in this. Differences we have already done. Let us move to the next. हाउ टू चेक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, है ना. जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन क्या है और इंडिया कैसा कर रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा अगर हमें पूरी कंट्री का पता लगाना है. तो यू नो दैट इज़ जीडीपी. आपने क्लास 9th में भी जीडीपी का कॉन्सेप्ट करा है, 10th में भी लिटिल बिट एंड 11th ऑल्सो. इंट्रोडक्टरी पार्ट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर ID also it is there. So what is the best indicator for of total output and services? एक इकोनॉमी में टोटल आउटपुट और सर्विसेज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इट रेफर्स एज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज देयर GDP. Now if we talk about the world top leaders in the GDP, so USA is first, then China, and then Japan, Germany, India. But this is the old slide, sorry. So now India has become the third largest. Japan और Germany, इसको India पीछे छोड़ चुका है. And it is great that India is doing very well and India is becoming the third largest economy of the world. किस विषय में? जीडीपी में. कैसे मेजर किया गया? व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री. सो ऑन दैट बेसिस इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट एंड आई एम टेकिंग दिस इज़ द ओके. नाउ व्हाट इज़ जीडीपी. तो फिर ये जीडीपी होता क्या है? ये चैप्टर पूरा का पूरा फोकस्ड इसी पर है कि हम कैसे पूरे देश की इनकम मेजर करते हैं, कैसे हम पूरे देश का फैक्टर इनकम निकालते हैं, टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं, बाहर से विदेशों से आने वाले पैसे को हम किसमें ऐड करते हैं. तो ये सब आप इस चैप्टर में सीखेंगे. तो शुरुआत होती है इसकी जीडीपी से. सो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट इज़ दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? दैट इज़ द value of final goods and services. We will understand why I am stressing on the word final goods and services in further in the chapter. So it is the value of final goods and services produced by all productive enterprise in the domestic territory. Here the domestic territory word is being focused. Again, it is also a concept which we will study in an accounting year. See, accounting year में बोलती हूँ पूछ है, हर डेफिनेशन में लगेगी क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक्स के मेजर्स हैं वो सब एनुअली होते हैं. चाहे आपने बजट में करा, चाहे आप जीडीपी में करो, चाहे आप नेशनल इनकम में करो, चाहे आप बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट्स करो, एवरीवेयर यू हैव टू राइट एट द एंड दैट इट इज़ एन इन अकाउंटिंग ईयर. सो it is the value of final goods and services produced in a country in an accounting year by all the enterprises. Now what does this mean? This also we'll do later on in this chapter. So it includes only value of final goods and services. अभी हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स. फिर मैंने बताया आपको दूसरा कि इट इंक्लूड्स ओनली करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. लास्ट ईयर का नहीं आता है इसमें. और इसमें आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी हुआ है. इट इंक्लूड्स बोथ नेशनल्स एंड नॉन नेशनल्स. व्हाट डज दिस मीन? कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो इंडियंस ने करा है, चाहे हमारी एमएनसीज ने करा है. एमएनसीज दूसरी कंट्री से आके हमारी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो जो रिसोर्सेस हैं वो हमारी कंट्री का यूज़ कर रहे हैं. तो इस वजह से जीडीपी में ये नहीं है कि जीडीपी में
सिर्फ इंडियंस ने जो प्रोड्यूस किया है, इट इज़ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी वी आर गोइंग टू डू इन द चैप्टर लेटर ऑन. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो अभी हमने जीडीपी पढ़ा. अब देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जैसे कि इकोनॉमी में क्या होता है, पैसा घूमता है ना. आप ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा अगर मेरे पास है तो मैंने उसको तिजोरी में रख दिया और मैं कोई और चीज़ से चीज़ें खरीद के आई. नहीं, वॉट एवर आई एम अर्निंग आई एम गोइंग टू इन द मार्केट एंड आई एम स्पेंडिंग दैट. जब मैं स्पेंड कर रही हूँ तो इट हैज़ बिकम इनकम फॉर सम अदर पर्सन. मेरा खर्चा किसी और की इनकम हो गया. फिर उसने जाके स्कूल में फ़ीस भर दी, वो जिस बंदे ने कमाया था उसके बच्चे के लिए, तो वो स्कूल की इनकम हो गई. स्कूल वालों ने अपने टीचर्स को सैलरी दे दी, वो टीचर्स की इनकम हो गई. तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी में जो है गुड्स क्या होता है, पैसा क्या होता है, सर्कुलर फ्लो में चलता है. क्लियर? सो दिस इज़ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विच नाउ वी विल डू इन डिटेल. What is the circular flow of income? That is how income is generated. First of all, कि हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले होता है प्रोडक्शन. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, सो वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. तो प्रोडक्शन किया हमने. अब मान लीजिए मैंने लाइक इन्होंने एग्रीकल्चर में, आप यहाँ पे देख रहे हो, उसने कॉर्न उगाए और इनका 50,000 का कॉर्न हुआ. इन्होंने मार्केट में क्या करा, सेल. तो ये क्या हुआ, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन्होंने अपना हिस्सा रख लिया और जो भी जिस लेबर को इस डिस्ट्रीब्यूशन से सपोज इन लोगों को मिला 60,000 रुपया, ओके, या जो वैल्यू का उन्होंने किया था 50,000 रुपया इन्होंने बेचकर रेस कर लिया. अब ये अपने पास नहीं रखेंगे, ये सारा क्या हो जाएगा, 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. किस किस के बीच में हो जाएगा भाई, अगर इसने ज़मीन रेंट पर ली थी उगाने के लिए तो रेंट देगी. फिर अगर इसने किसी से पैसा उधार लिया था सीड्स वगैरह ख़रीदने के लिए तो उसके लिए इंटरेस्ट देगी वो कैपिटल पर. ठीक है, लेबर को और लैंड को रेंट देगी, कैपिटल को इंटरेस्ट देगी. अगर इन्होंने लेबर रखे थे तो उनको वेजेस देगी, है ना. एंड अगर ये खुद इसने इतनी बड़ी रिस्क ली, कॉर्न का इतना बड़ा बिजनेस डाला, ग्रोइंग ऑफ कॉर्न एंड सेलिंग एंड ऑल दिस, तो इसको भी कुछ चाहिए. तो शी इज़ द एंटरप्रेन्योर, तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट. तो ये सब चीज़ें कि किस में हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई. अब ये जो बंदे थे, ये जिन्होंने भी रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट लिया, ये घर ले जाकर नहीं रखेंगे, ये सब अपनी नीड्स पूरी करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किस में बदल जाएगा, ये डिस्पोजिशन. What is disposition? Disposition is expenditure. ये खर्च करेंगे. अब जब खर्च करेंगे तो ये कुछ तो चीज़ें खरीदेंगे ना, तो जो भी चीज़ें खरीदेंगे वो वापस प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास आ जाएगा. सो दैट वे द होल ऑफ द इनकम जनरेटेड इज rotated in the economy from one sector to another, and that is known as circular flow of income. Don't worry, we will do it in more detail in the coming slides. Okay. So to produce these goods require factors of production. You have done in your class 9th also. I told you as in the previous slide, there are 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. ये चारों factors of production इसने लिए. फिर हमने बताया आपको कि जो उसने प्रोड्यूस किया वो इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. किस इनकम में डिस्ट्रीब्यूट किया था, अगर याद हो तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रेंट लैंड को दे दिया, लेबर को वेजेस दे दी और कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया और खुद ने प्रॉफिट रख लिया. तो इस तरह से इन्होंने क्या करा, 4 लोगों को बांट दिया. अब ये लोगों ने क्या करा, जाके खर्च कर दिया. खर्च किया तो इन्होंने बर्गर खरीदा या इन्होंने स्कूल फ़ी दी, जो भी किया, अगेन प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास ये पैसा चला गया. सो दिस वे द मनी सर्कुलेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट, so production phase, income phase and expenditure phase, these are the, and please take care, before last year this was the question being asked in the board exam, है ना. ये चैप्टर अच्छा वेटेज रखता है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे वी डोंट नो. तो ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया था, दैट इज़ एक्सप्लेन द 3 फेजेस, और अदरवाइज वी कैन एनी हाउ, मतलब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाना था, जिसमें आपको प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर, द मनी सर्कुलेट फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, एंड दैट आई एक्सप्लेन. ये प्रोडक्शन सेक्टर से, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से फैक्टर ऑफ इनकम के थ्रू इनकम में जाता है, और इनकम के बाद ये लोग खर्च करते, तो देन इट इज़ एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन. सो दैट इज़ देयर. Then there are 4 sectors in the economy. If you see,
in the there are two types of economies, closed and open economy. तो if we talk about the closed economy, तो closed economy में हमारे पास sectors होते हैं हाउस होल्ड. हम सब कौन है? हाउस होल्ड है. हम सब चाहे बिज़नेस क्लास हो, वो भी घर में तो वो हाउस होल्ड ही है, क्योंकि वो भी बच्चों की फ़ीस भरते हैं. आज कोई भी जैसे अगर मेरे पास अपना कोई बिज़नेस है तो भी मुझे स्कूल में फ़ीस भरनी है, तो भी मुझे सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी भी लानी है, तो भी मुझे किराना भी ख़रीदना है. तो everybody, I am a household also and producing sector also. So first of all household sector, all people are household. ये आ जाते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर. प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन होता है? जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. आपके पापा, आपके पेरेंट्स में जो भी जितने भी अर्निंग लोग होते हैं वो सब प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, कुछ ना कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं. सो वी ऑल आर प्रोड्यूसिंग सेक्टर. एंड देन द थर्ड इज़ द गवर्नमेंट. यू नो गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे रिलेटेड है ना. टैक्स लेती है, हमें सब्सिडी देती है, हमें पब्लिक गुड्स देती है. जो रोड से हम अपने लिए खुद रोड नहीं बना सकते, तो जितनी भी पब्लिक गुड्स हैं वो गवर्नमेंट हमारे को बना के देती है. पावर सप्लाई. सो ऑल दिस फॉर दिस गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड. एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज़ द मिडल. हम सब, हमारा जो गुड्स, हमारे जो पैसे का लेन देन, ये सब के लिए फाइनेंशियल सेक्टर काम में आ रहा है. एंड द लास्ट इज़ द फोर्थ सेक्टर इज़, if we talk about the fourth sector, it is the rest of the world. So what is that rest of world? It is financial market which is engaged in this. And हमने कहा कि दो इकोनॉमी होती है, एक तो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने 3 सेक्टर करे. कौन कौन से करे? पहला करा प्रोड्यूसिंग सेक्टर या हाउस होल्ड मान लीजिए. चलिए पहले हाउस होल्ड सेक्टर हम सब हैं, नेक्स्ट इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर, और तीसरा हमने कहा गवर्नमेंट सेक्टर. लेकिन जब हमारी इकोनॉमी ओपन होती है ना, इफ़ वी टॉक अबाउट द ओपन इकोनॉमी वेयर आर गेट्स आर ओपन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो एक और सेक्टर एंटर हो जाता है जो कि होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. और हमारे लोग बाहर जाके जॉब करते हैं, तो वहाँ से फैक्टर सर्विसेज भी हम देते हैं. बाहर के एक्सपर्ट्स को हम इंडिया में बुला के कुछ लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, तो हम फैक्टर सर्विसेज लेते भी हैं, देते भी हैं. तो 4 सेक्टर हो गए: प्रोड्यूसिंग हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. एंड इन सब के बीच में सो द इंटरडिपेंडेंस, ऑल दीज सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. या सो बताया मैंने जैसे आपको कि सारा जो है गुड्स एंड पैसा वो इकोनॉमी में क्या हो रहा है? सर्कुलर फ्लो में घूम रहा है. तो यू हैव इन योर कोर्स ओनली 2 सेक्टर मॉडल. एंड व्हाट इज़ 2 सेक्टर मॉडल? दैट इज़ 2 सेक्टर मॉडल. पहले 4 सेक्टर के भी हम रोटेशन ऑफ द इनकम करते थे, पर अभी आपको सिर्फ करना है हाउस होल्ड सेक्टर, और यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर. क्या बोलते हैं इसको? प्रोड्यूसिंग सेक्टर. अब इन दोनों के बीच में 2 चीज़ें मूव कर रही है. एक तो रियल फ्लो हो रहा है, एक मनी फ्लो हो रहा है. पहले मनी फ्लो समझ लेते हैं. आपको पता है कि हाउस होल्ड क्या करता है? सर्विसेज देता है, और बदले में उनको क्या मिलता है? सैलरीज, वेजेस, है ना. और ये पैसा किसने दिया? प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने. किसको दिया? हाउस होल्ड सेक्टर को. हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ गया. अभी पैसा अपने पास तो रख के नहीं रख बैठेंगे, ये लोग क्या करेंगे? इकोनॉमी में जाएंगे और जो जो इनकी ज़रूरत है उनके हिसाब से वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे. तो ये पैसा वापस से घूम के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू किसके पास आ गया? बिजनेस फर्म्स के पास, पूरे प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास. हम बात कर रहे हैं मैक्रो के रूप में. अब आप सोचेंगे कि जिससे लिया है उसी को थोड़ा ना दिया. नहीं, हम इन ऑल मैक्रो वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में पूरे हाउस होल्ड ने जितना भी पैसा कमाया था खर्च किया, और वो किसके पास आ गया? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास. तो ये जो आपका ऊपर का फ्लो है ये पूरा का पूरा कहलाएगा मनी फ्लो. ठीक है. अब समझते हैं रियल फ्लो. अब रियल फ्लो में क्या हुआ कि पैसे का तो ऊपर देख लिया हमने. अब गुड्स एंड सर्विसेज का जो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, वो होता है रियल फ्लो. सो रियल फ्लो इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर. तो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करा? गुड्स एंड सर्विसेज में क्या दिया इन्होंने? हाउस होल्ड ने, बिना उनके तो आप काम कर ही नहीं सकते प्रोड्यूसिंग सेक्टर. इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, अपने पास जो पैसा था वो ब्याज पे चलाया, लेबर ने अपना लेबर दिया. तो इन सब लोगों ने अपनी सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज किसको? बिजनेस फर्म को. और बिजनेस फर्म ने बदले में देखो मनी, मॉनेटरी फ्लो में तो इनकम दी,
लेकिन बदले में अगर बिज़नेस नहीं होगा तो हम जितनी भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, ये स्टाइलस है, ये स्मार्ट बोर्ड है, ये कैमरा है, ये चेयर टेबल, ये सब जो भी आपके है, ये सब प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने मैन्युफैक्चर करके दिए। तो दीज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न हु इज़ गेटिंग द हाउस होल्ड सेक्टर। So in all, in short, I should say money flow is the circulation of money between the producing sector and household sector. How money goes from producing to household in terms of factor payments, जैसे कि wages, interest, ये सब उनको देते हैं. And how money flows from household to producing sector by consumption expenditure. ये लोग चीज़ें खरीदते हैं और सारा पैसा प्रोड्यूसिंग के पास चला जाता है. And the second is real flow. What is real flow? It is the flow of goods and services between these two sectors. Which two sectors? Household and producing. हाउसहोल्ड ने प्रोड्यूसिंग को क्या दिया? सर्विसेज दी, और प्रोड्यूसिंग ने हाउसहोल्ड को क्या दिया? गुड्स प्रोड्यूस करके, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके. सो दिस इज नोन एज रियल फ्लो. सो दिस आई एम श्योर दैट आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर in relation to this real flow and money flow. Coming to the next is leakage and injection. अब what is leakage and what is injection? Leakage क्या होता है? जब हम इकोनॉमी में नया पैसा इंजेक्ट करते हैं, है ना, आपकी सर्कुलेशन में चल रहा है पैसा और कोई नया पैसा कहीं से आ गया, इकोनॉमी में स्पीड आ जाएगी, है ना. और अगर कहीं से पैसा लीक हो गया तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी की स्पीड स्लो हो जाएगी. सो दैट इज़ नोन एज लीकेज एंड इंजेक्शन. ऑल दोज थिंग्स विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, मनी फ्लो इन द इकोनॉमी आर इंजेक्शंस, एंड ऑल दोज विच कॉजेज द लीकेज और आउटफ्लो ऑफ द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी आर लीकेजेस. ठीक है. तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजेक्शंस कहाँ से आए. अगर गवर्नमेंट ने नया इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर हमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नया इन्वेस्टमेंट मिला, तो ये आपकी क्या हो गई? आपने नया पैसा इंजेक्ट कर दिया. अगर सरकार ने खर्चे किए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंजेक्ट करता है. और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या करते हैं? हम लोग गुड्स भेजते हैं तो बाहर के लोग पेमेंट करते, तो नया फ्लो मनी का आता है. सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ इंजेक्शंस. इफ़ यू टॉक अबाउट लीकेज, पैसा कहाँ निकल जाता है? तो अगर लोग सेविंग्स करते हैं तो डेफिनेटली वो मार्केट में सर्कुलेशन में से कम होता जाता है. तो जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगा. देन टैक्सेस, जो भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है, आपने लास्ट चैप्टर गवर्नमेंट बजट में करा है कि सरकार जो है फिस्कल टूल को यूज़ करती है इन्फ्लेशन में, कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम कर दे टैक्स बढ़ाकर. तो टैक्स जब भी बढ़ता है तो इनकम लोगों की कम हो जाती है, फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी से कम हो जाता है. तो टैक्स इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इज़ अ लीकेज. एंड इम्पोर्ट्स, अगर हम कहीं और कंट्री से गुड्स खरीदते हैं तो हमारा पैसा क्या हो रहा है? आउटफ्लो. तो इस वजह से भी लीकेजेस होते हैं. सो दिस इज़ द लीकेज एंड इंजेक्शन. कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ द leakage and injection. I hope it is clear to all of you. It is the outflow and inflow of the goods and services. Now if we want to grow the size of economy, तो हमें क्या करना है? Naturally नया पैसा लाइए. तो नया पैसा कहाँ से आएगा? कि हम ऐसे गुड्स बनाएं कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, तो there will be inflow of money in the economy. The government should do new and new investments, and you will do in the नेक्स्ट यूनिट ADAS की जो हमारी यूनिट है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि मनी जो है जो भी गवर्नमेंट मार्केट में डालती है थ्रू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, वो मल्टीप्लाई होती है और इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है. तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स शुड बी इंक्रीज्ड. सो दैट वे यू हैव टू इंक्रीज द इंजेक्शन और लीकेजेस को कम करना चाहिए. इसीलिए आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब मार्केट में मंदी होती है या डिफ्लेशन का टाइम होता है, तो गवर्नमेंट अपने जो RBI टैक्स रेट्स कम कर देती है, इंटरेस्ट रेट्स कम कर देती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें. तो सेविंग्स इज़ नॉट गुड. वी हैव डन, आई थिंक सेविंग पैराडॉक्सली हम बोलें तो माइक्रो लेवल पर सेविंग इज़ वेरी गुड. ओके, अगर मैं बचाऊं तो अच्छा है, लेकिन अगर सारी इकोनॉमी ने सेविंग्स शुरू कर दी तो लीकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. और जब लीकेजेस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी में धीरे धीरे पैसा का आउटफ्लो हो जाएगा, लीक हो जाएगा, और धीरे धीरे इकोनॉमी वीक और वीक बन जाएगी. तो इसलिए कहा जाता है कि एट इंडिविजुअल लेवल सेविंग इज़ अ गुड थिंग, बट अगर हम मैक्रो लेवल में बोले तो सेविंग इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. सो दिस पैराडॉक्स इज ऑल्सो मेनी अ टाइम्स यूज्ड. सो लाइकवाइज वी विल हैव टू टेक केयर दैट कि लीकेजेस कम हो और इंजेक्शंस बढ़ जाएं इकोनॉमी में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम एंड फैक्टर सर्विस. अभी हमने बार बार करा है ना, बार बार करा. क्या करा? फैक्टर इनकम. तो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम होती है फैक्टर इनकम कहलाती है. अब आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से कर रखे हैं बताइए?
कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और इनकी जो इनकम होती है वो सारी क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम एंड फैक्टर सर्विसेज। द एंड यूज क्लासिफिकेशन करें हम, एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने ये करा था कि फाइनल गुड्स लेना है हमें सिर्फ जीडीपी में। हमने डेफिनेशन में मैंने कहा था 3 चीज़ें मैंने उस पर स्ट्रेस किया था कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा कहा था डोमेस्टिक टेरिटरी में बना हुआ, है ना। तो फाइनल गुड्स को हम समझते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? ये फाइनल गुड्स डिपेंड करता है एंड यूज़ पे, एंड यूज़ पर। आज एक ब्रेड है, अगर ब्रेड मैंने घर में एज अ कंज्यूमर लाई और मैंने उसको घर में कंज्यूम किया तो ये क्या हुआ? फाइनल गुड हुआ। लेकिन वही ब्रेड अगर रेस्टोरेंट में यूज़ की गई सैंडविच बनाने के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हुई। तो 2 तरह के गुड्स हो गए, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। अब व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? So those goods which are used either for resale or further production in the same year are फाइनल गुड्स, आर इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आपने कोई भी गुड्स को कुछ और गुड बनाने में यूज़ किया या फिर उसको रीसेल पर्पस के लिए किया तो वो सारे ये इंटरमीडिएट गुड्स। और जो गुड्स आपने क्या करा है, मैंने बताया कि फाइनली कंज्यूम कर लिए, उसको रीसेल नहीं किया, दैट आर फाइनल गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर 2 पर्पसेस, ईदर फॉर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल पर्पस। अगर हम यहाँ पर देखें तो रीसेल, जैसे कि आप रिटेल शॉप करते हैं, आपने दूध का अपना मिल्क पार्लर लगा रखा है और वहाँ पर आप दूध बेचते हैं, तो वो दूध फाइनली कंज्यूमर करेगा, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो? रीसेल कर रहे हो। तो ये आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है और कंज्यूमर जो खरीद रहा है उसके लिए फाइनल गुड है। इसी तरह से फर्दर प्रोडक्शन में अगर मिल्क आपने खरीदा और आपने आपकी एक स्वीट शॉप है और आपने वहाँ पर पनीर और आपने उसका मिठाई बनाई है, स्वीट्स बनाई है, तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। सो इफ़ दे रिमेन अनसोल्ड दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। तो फिर अगर उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक जो बच जाता है उसको हम ऐड करके फॉर्मूले में करेंगे बाद में। सो दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स विच आर द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल। तो फिर फाइनल गुड क्या है? फाइनल गुड आर देयर दोज गुड्स विच आर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड और बाय द प्रोड्यूसर, दोनों चीज़ें, है ना। एंड देन इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट में आ गया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, तो ये अगर बार बार एग्जांपल पूछा जाता है या फिर हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछते हैं ट्रैक्टर परचेज बाय अ फार्मर, इज़ इट अ फाइनल गुड और एन इंटरमीडिएट गुड। अब आप सोचते हो ट्रैक्टर फार्मर ने खरीदा है, उससे वो और प्रोड्यूस करेगा तो ये इंटरमीडिएट गुड होगा, नहीं, ये फाइनल गुड होगा। कारण ना तो वो उस ट्रैक्टर को एज इट इज़ बेच रहा है और ना ही उसमें कुछ एडिशन करके उस ट्रैक्टर को बेच रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो वो आप फाइनल प्रोड्यूसर गुड है, क्योंकि वो कौन कंज्यूम कर रहा है? प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बात समझ में आई? तो जो भी मशीनरीज प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती है वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड होती है, वो फाइनल गुड ही कहलाती है, इज इट। और जो रॉ मटेरियल वगैरह जो कंज्यूम कर रहे हैं वो तो अलग ही है, इंटरमीडिएट गुड है ही। लेकिन अगर आप फाइनल गुड की डेफिनेशन समझेंगे तो कंज्यूमर के लिए भी फाइनल गुड है और प्रोड्यूसर के लिए भी फाइनल गुड है। अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ रखने के लिए आपने एक फ्रिज खरीदा, तो ये आपका होगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड। कारण ना तो आप उस फ्रिज को बेच रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट नहीं है, ना ही आपने उसमें कोई इनोवेशन करके उसको फिर से रीसेल पर्पस पे लिया है, तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड नहीं है, ये क्या है? फाइनल गुड। गॉट दैट? तो फाइनल गुड को अगर हम बात करें तो 2 तरह के हैं, एक तो कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर गुड, और जो होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड जैसे कि मशीनरीज वगैरह, मैंने एग्जांपल दे दिया, रेफ्रिजरेटर परचेज। ऐसे ही कई बार पूछा जाता है कार के 3 एग्जांपल मैं लेती हूँ। मैं मेरे घर में कार लाई, इट इज़ अ फाइनल कंज्यूमर गुड, ओके। एक डिस्ट्रीब्यूटर है हुंडई वाला, उसने कार बेच दी फिर से, है ना, तो वो उसके लिए हो गया इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसने रीसेल करा। और एक टैक्सी चलाने वाला बंदा है, उसने कार खरीदी है और उससे टैक्सी चला रहा है, तो ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। इज दैट क्लियर? तीनों एग्जाम्पल। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, आई थिंक इट इज क्लियर। फर्दर प्रोसेसिंग एंड रीसेल एंड फाइनल गुड आर पर्सनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट। इसको बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड, इसको बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड। दैट्स क्लियर। Now difference if we talk about
So tea leaves, here this examples I have already given you. If you see the difference, तो final goods are for final consumption and these are production for the goods. And final goods national income में include किया जाता है, ये नहीं किया जाता intermediate goods. Sale not meant for resale, final goods are not meant for resale, these are meant for resale. एंड प्रोडक्शन बाउंड्री, जो फाइनल गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हो गए, उसमें ना तो कोई अभी एडिशन किया जाएगा और ना ही उसमें कुछ भी रीसेल के लिए रखा जाएगा, ना सर्विस ऐड होगी ना उसमें प्रोडक्शन कुछ और ऐड होगा. और ये जो रहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, दे रिमेन इन द बाउंड्री. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस. नाउ कमिंग टू द दिस, सो दिस वी हैव डन. Final good, those goods which directly satisfy the consumer needs or producer needs, this we have done. Now types of consumer goods, तो हमने फाइनल कंज्यूमर गुड किए, फाइनल प्रोड्यूसर गुड किए. अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड, है ना. अब कंज्यूमर गुड्स 4 तरह के होते हैं, इसको ज़्यादा हम डिस्कस ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है. पहला होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, भाई आपने दूध लिया पी गए, ख़त्म, अब वो रीयूज़ तो किया नहीं जाएगा, तो ये होगा आपका सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड्स. और नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़ा लंबा समय के लिए चलता है, वो होता है टूथपेस्ट वगैरह जो है, वो हमारा इमीडिएटली वन टाइम में कंजम्पशन में नहीं होता है, ये 1 महीना चल जाता है, तो दैट इज़ सेमी ड्यूरेबल. देन ड्यूरेबल गुड्स आर फॉर सेवरल ईयर्स, जैसे आपका फर्नीचर है, कार है, ये सारे आपके ड्यूरेबल गुड्स हुए. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, ऑल इंटेंजिबल थिंग्स विच वी कुड नॉट सी, जो भी हम सर्विसेज रेंडर करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज क्या होती है, फाइनल गुड जो कि कंज्यूमर गुड जो कि कहलाती है सर्विसेज. तो 4 हो गए, सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स. अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, है ना. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी यूज़ होने वाले गुड्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स. तो प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के में जो भी यूज़ होता है वो होता है. एंड दे आर नॉट नेचुरल एंड मैन मेड एंड रिक्वायर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिटन हियर. सो इसमें आपको कोई भी मशीनरी है वो कैपिटल गुड है. इसमें ध्यान रखना कि जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं ना, जैसे कि नेल से और नट्स से, बोल्ट से, ये सिंगल यूज़ गुड्स होते हैं, ये कैपिटल गुड्स नहीं कहलाते. तो इसकी वैल्यू जिनकी हाई गुड्स है वही कैपिटल गुड्स कहलाते हैं. इसमें भी हम बोल सकते हैं कि जो एक मशीनरी है, स्विंग मशीनरी है ना, सिलाई मशीन, वो एक इट इज़ बीइंग परचेज्ड बाय हाउस होल्ड और इट इज़ बीइंग परचेज्ड बाय अ टेलर. फॉर टेलर इट इज़ अ कैपिटल गुड बिकॉज ही इज़ यूजिंग इट फॉर फर्दर प्रोडक्शन. And for consumer it is a consumption good, okay, because it is being used by not for producing further goods. Clear? So that is, वो फिर जो हाउस होल्ड खरीद के लाया है वो कैपिटल गुड नहीं है. क्लियर? क्योंकि वो घर के ही कपड़े उससे रिपेयरिंग वगैरह के लिए, घर के यूज़ के लिए लाए हैं, तो वो हाउस होल्ड गुड्स कहलाएंगे, कंज्यूमर गुड कहलाएंगे, कैपिटल गुड नहीं कहलाएंगे. इज इट? देन कमिंग टू द नेक्स्ट. सो फाइनल गुड्स मैंने बताया आपको 2 तरह के गुड्स हो गए. जो प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं वो होते हैं कैपिटल गुड्स, और जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स. और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स. सो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट का गुड्स आप डिफरेंट कर चुके थे, पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग. और फाइनल गुड में ही 2 तरह के गुड्स कर लिए हमने, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. ठीक है, मैंने बता दिया. अगर मशीनरी है वो एक टेलर खरीद के लाता है तो वो कैपिटल गुड है, और मशीनरी अगर एक हाउस होल्ड खरीद के लाता है तो वो उसका कंजम्पशन गुड है. सो दिस इज़ ओनली देयर. रेफ्रिजरेटर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि अगर कोई रेस्टोरेंट वाला अपने वहाँ पर रख के उस पर सामान रखता है और यूज़ करता है अपनी शॉप पर, अपने रेस्टोरेंट पर, तो वो फाइनल गुड ही है, लेकिन कौन सा है? फाइनल कैपिटल गुड. और यही रेफ्रिजरेटर अगर घर में लाया जाता है तो वो है फाइनल कंजम्पशन गुड्स. सो लाइकवाइज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न whether the following items are intermediate or final goods. अब आपको ये बताना होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द व्हीट फ्लोर, है ना, जब आटा, तो आटा क्या है? तो ये दोनों हो सकता है ना. अगर ये हाउस होल्ड ने खरीदा है तो क्या है? फाइनल गुड. लेकिन अगर बेकरी ने इसको खरीदा है ब्रेड बनाने के लिए तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड. ऐसे ही मशीन जैसे हमने रेफ्रिजरेटर की बात की थी अभी, सिलाई मशीन की बात की थी, तो अगर
फाइनल गुड है जब वो अगर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है, टेलर खरीद रहा है या रेस्टोरेंट में रेफ्रिजरेटर रख रहे हैं तो फाइनल, तो ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गया। लेकिन अगर इसको डीलर ने खरीदा है फॉर रीसेल पर्पस, है ना, रेफ्रिजरेटर के शॉप में गए आप, कैल्विनेटर या कोई से भी रेफ्रिजरेटर के एलजी के आप फ्रिज के डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, वहाँ से आप खरीद के लाए, तो उसके लिए वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो रीसेल के लिए रखे थे। फिर बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी, अब बुक्स ऑफ लाइब्रेरी डिपेंड्स अपॉन, सो फाइनली वी कैन से दैट कि कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा गुड फाइनल और इंटरमीडिएट, ये एंड यूज़ डिसाइड कर रहा है। अगर कोई चीज़ कंज्यूमर यूज़ कर रहा है एंड में तो फाइनल गुड है, या प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन तो फाइनल गुड है, और अगर वो रीसेल पर्पस या फिर आगे प्रोडक्शन उसमें और कुछ चेंज करके बेचा जा रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। दैट्स ऑल। सो दीज ऑल आर द प्रैक्टिस। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, भाई स्कूल में फर्नीचर बेचने के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा है तो ये फाइनल गुड है, फाइनल कैपिटल गुड। फिर चॉक्स, डस्टर, ये सिंगल यूज़ होते हैं, ये कोई ये मैं जैसे कहा नट बोल्ट वगैरह है ना, इस तरह से ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑन ऑफिस बिल्डिंग, अगर आपने कोई भी ऑफिस बिल्डिंग में कोई भी चीज़ का किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट किया है तो वो आपका फिर से फाइनल होगा। और एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑन एन बिल्डिंग, मेंटेनेंस पे जो खर्चा है उससे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। हाँ, उससे पहले भी गया जो आप स्टॉक एंड फ्लो समझ लीजिए। सो व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट? एनीथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना, एंड एनीथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम इज अ फ्लो। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम कोई भी चीज़ को ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जैसे अभी मैं बोलूँ कि आप पानी की टंकी देखिए ऊपर कितनी भरी हुई है, तो आपने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बोला हाफ अ टैंक, सो दैट इज स्टॉक, इतना स्टॉक है, लेकिन उसमें पानी आता जाता रहता है पूरा टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बोलते हैं टंकी भरी रहती है तो बोलते हैं हाँ ऑलमोस्ट भरी रहती है, दैट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, इज इट? सो वेन एवर देर इज़ बढ़ता चढ़ता रहता है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे कि हम जीडीपी है, नेशनल इनकम है, ये हम साल भर में देखते हैं, सो इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ओके। पर हम बैंक बैलेंस जो है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं। बुक्स हम बैलेंस शीट पे लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन दिस 31st March so and so year, so this is a stock concept, okay. So that way you have to understand that anything which is measured at a point of time on this date is a stock concept, and when it is period of time it is a flow concept. Then coming to the next withdrawals and this capital formation, I am not taking this, okay. Whether the following is stock or flow, तो हमने आपको बता दिया है कि जो कि लगातार जैसे इनकम ऑफ अ टीचर पूरे महीने की तो फ्लो है, मशीनरी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 मशीनें 3 मशीनें, सो इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। सो दिस वे यू विल हैव टू बाइफर्केट ऑल्सो, सो दैट वुड ऑल्सो बी देयर। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, इज इट? अब नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, फिर से मैं बोल देती हूँ, जीडीपी इज़ व्हाट? इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ द जीडीपी। अब जीडीपी 2 तरह की होती है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो व्हाट इज़ देन द नॉमिनल जीडीपी? तो नॉमिनल जीडीपी जो हम करंट प्राइस पर मेजर करते हैं, है ना, सो वो होता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो अभी मैं पहले आपको बता देती हूँ यहीं पर, वेट अ मिनट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट nominal GDP, what is nominal GDP? So GDP measured at current year price, okay. And then what is then real GDP? It is GDP measured at base year price, is it? अब बेस ईयर क्या होता है? ये आपका कांस्टेंट ईयर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कौन से ईयर को बेस ईयर माना जाएगा।
ये आपने लास्ट ईयर 11th क्लास के इंडेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ा होगा कि बेस ईयर वो ईयर होता है जो किसी भी कंट्री का नॉर्मल ईयर हो। जैसे जब ना तो कोई, जैसे लास्ट ईयर हमारा जो कोविड टाइम था वो बेस ईयर नहीं ले सकते क्योंकि उस वक्त जो हमारी प्राइजेस थी वो कांस्टेंट नहीं थी, बहुत फ्लक्चुएशन था, मार्केट वॉज नॉट नॉर्मल। इस तरह से कहीं पर बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटी आ गई लाइक सुनामी वाला ईयर, या फिर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ जैसे कि 2007, तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन हुआ था। तो ये सब ईयर्स नॉर्मल ईयर नहीं होते, बट नॉर्मल ईयर की प्राइस को क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट ईयर, और नॉर्मली इसकी जो प्राइस है वो मान ली जाती है 100 रुपीज़। ओके, और करंट ईयर तो जो फ्लो हो रहा है वो है ही। तो करंट ईयर प्राइस इज द प्राइस विच इज़ करंटली अवेलेबल। ये जो मार्केट की प्राइसेस है वो होती है करंट ईयर प्राइस। तो जब हम अपने जीडीपी को करंट ईयर प्राइस में मेजर करते हैं तो वो सबका सब जीडीपी क्या कहलाता है, नॉमिनल जीडीपी। अब हम क्यों रियल जीडीपी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि पिछले साल से हमने अभी इस साल ग्रो किया या नहीं किया। वी वॉन्ट टू कंपेयर दिस 2 ईयर्स। तो अगर हम करंट ईयर को कंपेयर करेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है या फिर हमारी जीडीपी बढ़ी है प्राइस बढ़ने की वजह से, इज इट। तो अभी इसको हमको क्लैरिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी। गॉट दिस। अगर मैं इसको यहाँ पर समझाऊँ आपको, okay, so it is nominal GDP is the monetary value of all goods and services which are at the current year price and this is at the base year price। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। सपोज यूनिट्स ऑफ करंट ईयर जो है, वीट का हुआ वीट के 500 वेट अ मिनट, वीट का 500 kg हुआ, प्राइस इसकी थी 20 रुपीज़। अगर हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 10,000 रुपीज़, है ना। क्लॉथ को किया हमने तो 300 यूनिट्स हमारे क्लॉथ प्रोडक्शन हुआ, प्राइस करंट ईयर की 10 थी तो इसका प्रोडक्शन हुआ 3000। सिमिलरली अगर हमने शुगर प्रोड्यूस की 200 kgs यूनिट से ये, तो ये आप kgs कर सकते हैं, ये आप बेल्स कर सकते हैं, ये भी आप क्विंटल्स कर सकते हैं, जो भी है आपको, वॉट एवर यूनिट इज़ बिंग गिवन। एंड देन 5 रुपीज़ का रेट था तो 1000 रुपीज़। अब इसका टोटल जीडीपी हमारा, हमने सारे अभी यहाँ जस्ट एग्जांपल के तरीके से हमने 3 ही गुड्स लिए। हम, आपको पता है हमारी कंट्री में तो हज़ारों गुड्स है, तो हर गुड को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो उसकी प्राइस होती है, टोटल आउटपुट होता है, उसको हम टोटल करते हैं तो आपका फाइनल आपका जीडीपी निकलता है। तो यहाँ ये जीडीपी बता रहा है हमारा 14,000। ओके, अब हम अगर इसको बेस ईयर प्राइस मानते हैं, बेस ईयर मतलब कि मान लीजिए कि ये आपकी करंट ईयर प्राइस है 2025 की, एंड बेस ईयर हमने ले लिया सपोज 2020 वॉज द बेस ईयर। हर साल की प्राइस को, हर साल के प्रोडक्ट को हमें 2020 की प्राइस में मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें रियल पिक्चर पता चल जाए। तो अभी अगर हम 2020 की प्राइस, लास्ट ईयर का मान लीजिए 2020 में ही हुआ था, अभी हम 2020 की प्राइस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीडीपी कितना है, 6,900। सो दैट वे इट इज़ गिविंग इन्फ्लेटेड वैल्यू। जो इन दोनों का डिफरेंस है वो इन्फ्लेट हुआ है, क्यों, क्योंकि प्राइस राइज हुई। अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट नॉमिनल जीडीपी एंड बेस ईयर, आपने आउटपुट तो सेम ही लिया है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते समय, तो आउटपुट तो पिछले साल वाला, ये जो ईयर है, ये जो आपका सपोज आउटपुट है, ये 2024 का ये था और 2025 का भी यही आउटपुट था। तो आप ये देखें कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल, आउटपुट बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन जीडीपी तो देखिए आप 6,000 का बोल रहे हैं, 14,000। तो आपको ये पिक्चर दिखेगी कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर गई, हमारी जीडीपी इतने % से बढ़ गई। लेकिन अगर आप आउटपुट देखेंगे 2024 और 2025 का, वो सेम था, लेकिन जीडीपी क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर थी प्राइस ऑफ करंट ईयर और ये थी प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो लास्ट ईयर का ये जो जीडीपी था, लास्ट ईयर का जो भी जीडीपी था वो क्या था, बेस ईयर प्राइस पर वो हम जीडीपी वैल्यू में तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में आउटपुट नहीं बढ़ा, सेम टू सेम रहा, लेकिन जब हमने, हमारे पास हाथ में क्या आता है, जीडीपी, आउटपुट नहीं आता बच्चों। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो वो प्राइस से मल्टीप्लाई होकर कन्वर्ट होकर आता है। तो हमारे पास जो कन्वर्ट होकर आया था जीडीपी 14,000, जबकि जब हमने इसे कन्वर्ट किया कि देखिए प्रोडक्शन की वजह से कितना बढ़ा, तो इट वाज ओनली 6,900। तो समवेयर इट वाज गिविंग अस द इन्फ्लेटेड वैल्यू। इसको मैं एक और एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लेट मी चेक द अनदर एग्जांपल। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर कैसे बनाते हैं ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको एक एग्जांपल से और समझा दें कि कैसे ये ट्रू पिक्चर आपको मिलती है जब आप रियल जीडीपी निकालते हैं, ना कि नॉमिनल जीडीपी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ
क्वांटिटी मतलब कि आउटपुट, और यहाँ ले रही हूँ प्राइस, और यहाँ ले रही हूँ नॉर्मल जीडीपी। ओके, फिर से मैंने ली क्वांटिटी, फिर से मैंने ली प्राइस, और फिर से मैंने लिया नॉमिनल जीडीपी। क्लियर? अब ये ईयर हमने लिया 2024 2025। ओके, क्वांटिटी 100, प्राइस 10, नॉमिनल जीडीपी 1000। ओके, 2025 क्वांटिटी 100, प्राइस 50 एंड नॉमिनल जीडीपी 5000। भाई आपके पास तो इकोनॉमी में ये मिल गया आपको कि मेरी जीडीपी लास्ट ईयर 2024 में थी 1000 और अभी मेरी जीडीपी 5 गुना बढ़ गई। लेकिन आप सच तो देखिए, आउटपुट नहीं बढ़ा है, आउटपुट वही है जो कि पर कैपिटा आउटपुट जाएगा। लोगों के पास जो पैसा, लोगों के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे वो उतने ही है। पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, डिमांड बढ़ गया होगा, लेकिन गुड्स सर्विसेज नहीं बढ़े। सो आप ये देखिए कि जब हमने 2024 का करंट ईयर प्राइस, ये आपकी कौन सी हुई, करंट ईयर प्राइस, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सिचुएशन आई। अगर हम इसकी जगह रियल जीडीपी निकालते है ना, अगर हम इसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते तो क्वांटिटी 2024 ईयर ले लेते हैं, 2024 इसकी क्वांटिटी सेम ले रही हूँ मैं 100, और 2025 में भी 100, और बेस ईयर प्राइस ये कौन सी होगी, बेस ईयर प्राइस, ये जो भी प्रोडक्ट है इसकी बेस ईयर प्राइस मान लीजिए सरकार ने रख रखी थी 20 रुपीज़, और इसकी भी फिर 20 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2000 था और ये 2000 ही आएगा। तो अब हम जब रियल जीडीपी देखेंगे तो हम देखेंगे कि 2 साल का कंपैरिजन, तो हम बोलेंगे हमारा जीडीपी बढ़ा ही नहीं, 2000 का 2000 ही रहा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का झूठ नहीं है, ये शो कर रहा है ट्रू पिक्चर ऑफ योर प्रोडक्शन, व्हाट, रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेटेड प्राइस की वजह से 5 टाइम्स अपने आप को इंक्रीज़ करा हुआ बता रहा है। पर अब आप कहोगे कि अगर 2 साल में प्रोडक्शन बढ़ गया तो लेट अस डू दैट ऑल्सो। अगर मैं इसको कर लेती हूँ 110 kg, है ना, प्रोडक्शन बढ़ गया 10 kg से, तो ये जो आपका आएगा क्या आ जाएगा, 2200 रुपये। तो अब कम से कम आपको ये पता है कि ये जो 200 का वैल्यू बढ़ा है, 200 करोड़ रुपीज़ का, ये प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा है, प्राइस तो कांस्टेंट ही थी। तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई कि जो भी आपका रियल जीडीपी बढ़ के आया है ये किस वजह से आया है, प्राइस की वजह से नहीं आया, ये तो सेम थी, ये आया है क्वांटिटी इंक्रीज की वजह से। सो देयरफॉर रियल जीडीपी गिव्स अस द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी, इज इट। अब हम आ जाते हैं जीडीपी डिफ्लेटर पर। अब बात ये हो रही है कि अब आप कहेंगे कि क्या मैडम ऐसे हर साल हर गुड्स को पहले नॉमिनल से फिर रियल से ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, देयर इज़ अ फार्मूला बाय विच जो भी हमारी नॉमिनल जीडीपी है हम वो फार्मूला लगा के उसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? तो पूरी इकोनॉमी में जो भी आता है गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू वो करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जीडीपी आ जाता है। और जब हमें पता लगाना है पिछले साल से कंपेयर करके कि ग्रोथ हुई या नहीं, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रियल जीडीपी में। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? देयर इज़ अ फार्मूला, एंड व्हाट इज़ द फार्मूला? that is price index is equal to nominal GDP upon real GDP into 100, is it? अब सिंपल वे में देखिए, ये नॉमिनल है जीडीपी और ये आपका रियल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी सेम गुड्स करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई हो क्या है, और बेस ईयर। अब जो मैंने आपको तब बताया था कि वहाँ 14,000 बता रहा है और बेस ईयर प्राइस 7,000 बता रहा है, तो आप क्या निकाल सकते हो इससे, कितने परसेंट से प्राइस बढ़ी है, कितने परसेंट से प्राइस बढ़ी है। तो आपका जो नॉमिनल जीडीपी था वो कितना था, 14,000, दैट यू कुड सी। रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी आई, आउटपुट इज सेम, है ना, 500 इंटू 10 5,000, 300 इंटू 5 1,500, 200 इंटू 2.5 500। और ये जो है ये करंट ईयर से प्राइस, ये प्राइस करंट ईयर है, ये बेस ईयर है ना। तो ये आउटपुट सेम है, लेकिन फिर भी आप डिफरेंस देख सकते हो। नॉमिनल जीडीपी 14,000 बता रहा है और रियल जीडीपी 7,000 बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी डज नॉट गिव द ट्रू पिक्चर। ये जितना भी जीडीपी बढ़ा है किसकी वजह से बढ़ा है, प्राइस राइज की वजह से, आउटपुट सेम है।
तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपका नॉमिनल जीडीपी 14,000 है, रियल है 7,000 इंटू 100, तो ये प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा। प्राइस हमारी कंट्री में 200% से बढ़ चुकी है, 200% से आपकी क्या हो गई है, मतलब कि 100%, हम बेस क्या मानते हैं 100, तो 100 गुना बढ़ी। इसको आपको कैसे करना है, 100 में से माइनस कर देना है। तो 100 तो ऑलरेडी माना जाता है कि 100 है बेस, और 200 हुई है, मतलब कि प्राइजेस हैव ऑलमोस्ट बीइंग डबल्ड। ओके, 100% से प्राइस बढ़ गई, मतलब डबल हो गई है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द वे वाई वी स्टडी रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. Nominal GDP is the GDP given at the current year price. Real GDP is GDP given at the base year price. Nominal GDP does not show the true picture. Real GDP shows the true picture of the economy. Nominal GDP increases even mainly maybe not output भी बढ़ सकता है, but nominal GDP increases for both the reasons, increase in output and increase in price level. Real GDP increases only when there is increase in output. Price level is constant. Clear? So that is the real and nominal GDP. So this already we have done. Consumer price index, ये आपको पता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आप कर चुके हैं लास्ट ईयर की क्लास में, है ना। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स इन करंट ईयर एंड बेस ईयर इनटू 100। तो करंट ईयर को वही हम बोलेंगे नॉमिनल, और ये हो गया रियल इनटू 100। सो द सेम थिंग इज देयर रिटन इन अ डिफरेंट वे। देन नॉमिनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये चीज़ आप this investment and capital formation. So children, up to this we have studied till now. अगर हम बात करें कि अभी तक हमने कितना पढ़ा है, तो अभी तक हमारा जो लास्ट हमने आपको पढ़ाया है वो है जीडीपी डिफ्लेटर। अब हम अपने सेकेंड इसमें सेशन में बाकी सब करेंगे कि कैसे नेशनल इनकम मेजर की जाती है। तो ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड्स और आपके कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, आपका नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, है ना। अब हमको आगे पढ़ना है, दैट इज़ नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, डेप्रिसिएशन एंड डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम विल डू इन द नेक्स्ट सेशन।